have a question for you. आपके लिए आप सबके लिए एक सवाल है मेरे पास। How many of you wants to become rich? आप में से कौन कौन अमीर होना चाहता है? Trick question, right? No. Okay, let me. You all are rich, right? कि आप सब लोग अमीर हैं। How many of you want to have $1 million in your bank account? आप में से जिसके करोड़ों रुपए आपके बैंक के खाते में हो, कौन चाहता है करोड़ों रुपए? $1 billion. खरबों रुपए। $1 billion rupee. खरबों रुपए। Some of you don't want, huh? आप में से कोई ऐसा है जो नहीं चाहता? Is there anybody who doesn't want to have $1 million, a crore in your account? ऐसा कोई है जो करोड़ रुपए नहीं चाहता अपने बैंक के खाते में? 100 crore, 100 करोड़, 1,000 crore, 1000 करोड़, 1 million crore? लाख करोड़। Anybody who doesn't want $1 million crore in your bank account? ऐसा कोई है Raise your hand. 1000 करोड़ नहीं चाहता है? अपने हाथ खड़ा करिए। ज्यादा हो गया। But I don't see any hands raised. किसी का हाथ नहीं खड़ा हुआ। You guys are very strange. आप लोग बहुत अद्भुत हो। In other churches, you'll see a lot of hands, right? Saying, I don't want millions of crores of rupees in my account. तो दूसरी कलीसियां उनमें बहुत सारे हाथ खड़े हो जाएंगे, नहीं मुझे इतना पैसा, मुझे कई हजार करोड़ नहीं चाहिए। It's quite strange to see that is none of that response came from here. मगर ये बहुत अद्भुत चीज है कि ऐसा आप लोगों में से किसी ने ऐसा नहीं कहा। For other people. दूसरे लोगों के लिए। But for us, because we've been receiving the teaching about finance, about wealth, we have the correct response. क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं पैसे के बारे में, आर्थिक स्थिति के बारे में, इसलिए जो हमारा उत्तर है वो सही है। So I'm so happy to see that. बहुत खुश हूँ ये सब कुछ देख के। All right, so we're going to be talking about the algorithm of abundant life. Okay, yeah, abundant life. That's the big theme, right? तो जो अबंडेंट लाइफ है मतलब बहुतायत का जीवन, वो हमारी मेन थीम है, मेन टॉपिक है। And the subtopic is the heavenly algorithm for financial success. मगर आज हम सीखेंगे कि आत्मिक तरीके से कैसे हमारे पास आर्थिक रूप से हम सफल हो सकते हैं। God seems to be speaking a lot in the IT language, right, to us. देखिए परमेश्वर आजकल बहुत ज्यादा IT लैंग्वेज, कंप्यूटर की भाषा में बहुत बात कर रहा है हमसे। You've heard of the word algorithm, right? आपने ये वर्ड सुना है एल्गोरिथम? Facebook algorithm, फेसबुक की एल्गोरिथम कि वो कैसे काम करता है, right? Google algorithm. गूगल की एल्गोरिथम कि गूगल कैसे काम करता है। If you want your stuff to come up on top of Google search, you have to put up things which the Google algorithm can recognize and push you to the top, right? तो देखिए गूगल में हम सर्च करते हैं, मगर जो ऊपर की चीजें जो सबसे टॉप पे आती हैं वही खोलते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी चीजें ऊपर आए तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि गूगल आपकी चीजों को उठाए और ऊपर डाले ताकि सबको वो दिखे। So if you can get the things done, then you are a success in your, we call it marketing. तो अगर आप वो सही ढंग से कर रहे हैं तो आपकी चीजें ऊपर आएंगी और उससे आपकी मार्केटिंग अच्छी होगी, आपको सफलता मिलेगी। And for that you need to take advantage of the algorithm of the search engine. तो जो गूगल है, जो सर्च इंजन है जहाँ पे चीजें ढूंढी जाती हैं, उसकी जिस तरीके से एल्गोरिथम काम करती है, अगर आप उसको समझ जाएंगे तो आप उसका फायदा उठा सकते हैं। So there is also a heavenly algorithm. तो उसी तरीके से आत्मिक एल्गोरिथम भी है। And we need to know what the
heavenly algorithm wants. और हमें भी ये चीज समझनी है कि जो आत्मिक एल्गोरिथम है वो हमसे क्या चाहती है, So that we can also become a success in our financial life. ताकि हम भी सफल हो सके अपने आर्थिक जीवन में। So isn't that the problem, or isn't that the challenge, or isn't that the issue, that the pastors here are saying you all are rich, and yet in your pocket nothing is there, right? तो क्या ये समस्या नहीं है कि हम बोल तो रहे हैं, पास्टर बोल तो रहे हैं कि आप सब लोग बहुत अमीर हैं मगर जेब खाली है, And that is the problem for most people. और ये समस्या सिर्फ बहुत लोगों के साथ है। So we need to also understand that the natural things, the physical aspects of things is as important as the spiritual things also. तो जैसे आत्मिक चीजें बहुत जरूरी हैं, उसी तरीके से शारीरिक चीजें, शारीरिक वस्तुएं भी बहुत जरूरी हैं। We want to manifest in the natural realm what is true in the spiritual realm. तो जैसे आत्मिक चीजों को हमें ग्रहण करना है, वैसी शारीरिक चीजों को भी हमें पाना है, बिल्कुल इसी जीवन में यहीं पे पाना है। And that's the reason why we study the Bible. और यही कारण है कि हम परमेश्वर के वचन पढ़ते हैं, And that's the reason why we gather like this, to hear the word of God being expounded. और यही कारण है कि हम ऐसे इकट्ठे होते हैं इन कैंप में ताकि हम परमेश्वर के वचन सुन सकें। And so I want you to pay careful attention. इसीलिए आप मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना। See, if you believe in your heart that being rich is not a good thing, or that God doesn't want you to become rich, or being rich is not a very spiritual thing, then you will never become rich. अगर आप ये सोचते हैं कि अमीर होना, बहुत ज्यादा पैसा होना आत्मिक तरीके से अच्छा नहीं है, तो आपके पास कभी ज्यादा पैसा आएगा ही नहीं। And that's the reason why we need to know the word. What does the word of God says about finance, about money, about wealth, all of these things. और इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमें जानना है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है पैसे को लेके, हमारी आर्थिक स्थिति को लेकर परमेश्वर का वचन क्या कहना चाह रहा है हमसे। We need to have a revelation हमें इसमें प्रकाशन चाहिए of the financial realms. ताकि हम आर्थिक चीजों को अच्छे से समझ सकें। The Bible says in Hosea 4:6 that my people are destroyed because of lack of knowledge. तो होशिया में बाइबल कहती है कि मेरे लोगों का नाश हो गया है क्योंकि उनका जो ज्ञान है, उनकी जो समझ है वो बहुत कम है। And so knowledge about the financial realm is very, very important for us. आर्थिक चीजों को लेके हमारा ज्ञान, हमारी समझ है वो बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। And so I've been a student of finance, of wealth creation for quite some time. तो मैंने इस चीज में जो आर्थिक चीजों को लेके मैं इस चीज का स्टूडेंट, एक छात्र रह चुका हूँ काफी टाइम से अब। And God has revealed certain things to me also. और परमेश्वर ने भी काफी चीजों में मुझे प्रकाशन दिया है। And so we will go into the Word of God to see what the Word of God has to tell us about these things. तो इसीलिए हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे कि परमेश्वर का वचन इन चीजों के बारे में हमें क्या बताता है। First of all, let's go to Genesis chapter 1 verse 26. सबसे पहले चलते हैं उत्पत्ति 1 में। And God blessed them, परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी and God said unto them, और परमेश्वर ने उनसे कहा be fruitful, कि आप be fruitful and multiply. कि आप फ्रूटफुल मतलब बहुत फल पाइए। Sorry. Is there something that's not right? Let me just check, okay? Let's go back to the Word of God. परमेश्वर के वचन में जाते हैं। Sorry, I gave you the wrong Bible reference. That's not your fault. 28, that's right. Chapter 1.
chapter 1, verse 28. उत्पत्ति 1 का 28 पढ़ेंगे हम लोग। So let me just read the verse and then he can interpret it, okay? And God blessed them, and God said unto them, Be fruitful and multiply and replenish the earth and subdue it, and have dominion over the fish of the sea and over the fowl of the air and over every living thing that moveth upon the earth. और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाली सब वस्तुओं पर अधिकार रखो। So what do we see the first thing here in this verse? तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे? It says, and God bless them. परमेश्वर ने आशीष दी। We've heard about the blessing of God from Pastor Jason, Brother Victor also. परमेश्वर की आशीष के बारे में हमने पास्टर जेसन और भाई विक्टर से पहले ही सुन चुके हैं। We have to know and believe that we are blessed. हमें ये चीज जानना और इस पे विश्वास करना बहुत जरूरी है कि हम लोग आशीषित हैं। Not God will bless us, ऐसा नहीं है कि परमेश्वर हमें आशीष देगा, ऐसा नहीं है। but that He has already blessed us. उसने हमें आशीष दे दी है, पहले से ही दे दी है। It says God blessed them. यहाँ पे लिखा है परमेश्वर ने आशीष दी। What tense is that? ये कौन सा टेंस है? इंग्लिश में बोलते हैं टेंस। It is in the past tense, right? भूतकाल हो चुका है। It's not God will bless them. ऐसा नहीं है कि परमेश्वर आशीष देगा। भविष्य के बारे में बात नहीं हो रही। It is God bless them. ऑलरेडी आशीष दे चुका है परमेश्वर। Very, very important. ये बहुत ही जरूरी बात है। We read the word like this, and yet when we pray, our expectation is that God, you have to bless me, or God will bless me. हम परमेश्वर के वचन तो ऐसे पढ़ रहे हैं, लेकिन जब हम प्रार्थना कर रहे हैं तो हम क्या बोल रहे हैं कि परमेश्वर हमें आशीष दो। Isn't there a disconnect? तो देखिए ये दोनों चीजें मैच नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं कुछ डिस्कनेक्शन है, कुछ चीजें अलग अलग हैं। God's word is saying you are already blessed. परमेश्वर का वचन कहता है कि पहले से ही आपके ऊपर आशीष आ चुकी है। And we're praying, God, please bless me. लेकिन हम प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर हमें आशीष दो। Two things. ये दो अलग बातें हैं। Number one, you don't know that you're already blessed. कि आपको नहीं पता कि आशीष आपके ऊपर पहले से आ चुकी है, Or या you don't believe, even if you know, you don't believe you're already blessed. तो हो सकता है कि आपको पता तो है दिमाग में, मगर आप उसका विश्वास नहीं करते हो। These two things ये दो बातें are very dangerous things for us. ये हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकती हैं। Ignorance ना जानना कि हमें नहीं पता, and unbelief. और विश्वास ना करना। If we have these two, nothing will happen to us. अगर ये दो बातें हैं तो कुछ नहीं बदलेगा, कुछ नहीं होगा जीवन में। So we need to beware of ignorance and unbelief. तो इसीलिए हमें बहुत ध्यान देना है कि हम इन चीजों को ठीक से समझें, हम इन चीजों को ध्यान से समझें। And that's the reason why we are sitting here together like this. और इसीलिए हम यहाँ इस कैंप में आए, साथ में बैठ के वचन सीख रहे हैं, So that we will get to know the truth ताकि हम लोग सच को जान सकें and believe the truth. और उस पर विश्वास कर सकें। If we don't know the truth, how will we even believe, right? अगर हमें सच पता ही नहीं है तो हम उस पर विश्वास कैसे करेंगे? And so it is so important for us to know and to believe. तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि पहले हम सच को जानें और दूसरा उस पर विश्वास करें। So
coming specifically to our financial situation, तो अगर हम खासकर सिर्फ अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में बात करें, how many of us are having financial problems किस right किस के now? पास आर्थिक रूप से You दिक्कतें हैं? don't have to raise your hands. पैसे की दिक्कत है, आपको हाथ खड़ा करने की जरूरत है, मन में हाथ खड़ा कर रहे हैं। How many of you, it will be so nice if you have another 1 lakh extra in your bank account, बहुत अच्छा है कि अगर 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा पड़े हैं बैंक में, right? If we are in that situation, अगर हम उस परिस्थिति में हैं, we need to truly know the truth and believe the truth about finances. तो अगर आप उस परिस्थिति में हैं तो आपको सच जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आर्थिक रूप से क्या सच बोलता है परमेश्वर का वचन, वो जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। Now the number one thing to know and to believe is that we are already blessed. तो जो पहली चीज है जो हमें जाननी है, जो हमें विश्वास करना है कि हम लोग पहले से ही आशीषित हैं। I am already blessed. मैं पहले से ही आशीषित हूँ। Can you say that? I am already blessed. आइए हम बोले, मैं पहले से ही आशीषित हूँ। I am already blessed. Very good. बहुत अच्छा। Can you please confess this every single day? क्या आप इसी चीज को हर रोज दोहरा सकते हैं, हर रोज विश्वास के साथ दोहरा सकते हैं? If we can do that, things will begin to change for us. अगर आप ऐसा करने लगेंगे तो आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएंगे। Have you heard of this saying क्या आपने ये सुना है इसके बारे में? that the Jewish people are very rich people? आप लोगों ने क्या सुना है कि जो यहूदी लोग हैं वो बहुत अमीर लोग हैं? They're the most persecuted people, वो सबसे ज्यादा सताए हुए हैं, but they're the most successful people around the world. मगर वो सबसे ज्यादा सफल भी हैं पूरी दुनिया में। All the big businesses, सारे जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, जो बड़े बड़े बिजनेस हैं लोगों के, all the big bankers, जो बड़े बड़े बैंक वाले हैं, they're Jewish people. वो लोग यहूदी लोग हैं। Why is that? ऐसा क्यों? Because for the Jewish people, they truly know and believe that they are the people of God Almighty. क्योंकि जो यहूदी लोग हैं उन्होंने बहुत अच्छे से इस चीज को विश्वास करा हुआ है कि हम परमेश्वर के लोग हैं। They believe that they are the blessed people of God. वो विश्वास करते हैं कि उन पे परमेश्वर की आशीष है। They believe that they are the chosen people. वो विश्वास करते हैं कि उन लोगों को चुना गया है परमेश्वर द्वारा। And that's the truth also. और ये सच्ची बात भी है। They believe in the truth वो सच में विश्वास करते हैं because they know the truth. क्योंकि उनको सच पता है, And that's why they're blessed और today. इसीलिए वो आशीषित है। Are you also chosen? Are you also blessed? क्या आप लोगों को भी चुना गया है? क्या आप लोग भी आशीषित हैं? If so, अगर ऐसा है, we should also be like those Jewish people, तो isn't it? हमें भी उन यहूदी लोगों की तरह होना है। If we begin to believe and if we begin to dwell on this truth, then we will also become like them. अगर आप इस सच को ग्रहण करते हैं और इस पे मग्न करते हैं तो आप भी उन यहूदियों की तरह हो जाएंगे। There's a very interesting former worship leader. एक बहुत अद्भुत अनोखा वर्शिप लीडर जो गाना बजाते हैं वो थे। His name is called Rick Pino. उसका नाम रिक पिनो था। Anybody who have heard the name Rick Pino? आप में से किसी ने रिक पिनो का नाम सुना है? Not too many of us. कम लोगों ने सुना है। But yes, he is a very famous worship leader. तो वो बहुत फेमस जो वर्शिप होती है, परमेश्वर के गाना बजाना होता है, उसका बहुत बड़ा अच्छा बहुत फेमस लीडर था। But today he is become a very big businessman. मगर आज वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन, एक उद्योगपति बन चुका है। Very successful businessman. बहुत सफल हो चुका है अपने जीवन में। And he moves around now with a whole lot of very successful people. और वो बहुत सारे दूसरे सफल लोगों के साथ इधर से उधर घूमता है। And he met up with this one very successful
Jewish businessman और एक बहुत सक्सेसफुल यहूदी से मिला and he asked him this question. और उसने उससे ये सवाल पूछा, Why is it that the Jewish people are known to be very wealthy and very successful people? तो उसने इस यहूदी से पूछा कि भाई जो यहूदी लोग हैं वो इतना सफल कैसे हैं? And his answer goes like this. और उस यहूदी ने जवाब दिया We Jewish people, कि हम जो यहूदी हैं we are obsessed with exchanging values. तो हम लोगों के अंदर ये बहुत ज्यादा है कि जो अपनी जो चीजें हैं वो दूसरों के साथ बांटना. Bringing value to the table can make you rich. तो जब आप दूसरे के साथ बांटते हैं तो उससे आपको आर्थिक ब्लेसिंग्स मिलती हैं. Are you valuable? तो क्या आप भी कीमती हैं? Do you have value? तो आपके पास भी कोई ऐसी चीज है जो बहुत कीमती है? Do you believe in that? क्या आप इसमें विश्वास करते हैं? Yes. Do you know how much valuable you are? क्या आपको पता है आप कितने कीमती लोग हैं? The more value a thing has, the higher the price, isn't it? एक चीज जिसकी कीमत जो बहुत ज्यादा कीमती है तो वो बहुत ज्यादा महंगी भी होती है. A Maruti K100, right? A Maruti car, एक जो मारुति की ऑल्टो K10 कार है, yeah, it'll cost about 4-5 lakhs, वो right? 4-5 लाख रुपए की आती है. What about a Mercedes Benz मगर जो मर्सिडीज बेंज है or a Rolls Royce? या रोल्स रॉयस है, Way higher in value than the Maruti car, isn't it? उसकी कीमत मारुति की ऑल्टो K10 से बहुत ज्यादा है. Accordingly, the price is also very high. तो उसी प्रकार से उसकी जो कीमत है, जो उसके वो कितने रुपए की है, वो भी बहुत ज्यादा है. It goes in terms of crores and crores of rupees. कई करोड़ की होती है ये गाड़ियां. One of my favorite cars मेरी एक सबसे पसंदीदा गाड़ी is BMW Z4. वो BMW Z4 है. Do you know that BMW Z4? आप में से किसी को पता है BMW Z4 गाड़ी के बारे में? Not many, right? But if you're interested, you will know it, right? अगर आपको गाड़ियों में इंटरेस्ट है, गाड़ियों में आपकी रुचि है, तो आपको पता होगा BMW Z4 के बारे में. It goes beyond 1 crore. वो 1 करोड़ से भी महंगी है. You can open up the car, you can close up the car. उसकी छत आप खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं. Very nice. बहुत अच्छी कार है. It can go really fast. बहुत तेज चलती है. Only 2 seats. सिर्फ 2 सीटें उसमें. For you and your loved one आप और आपका जो प्यार है सिर्फ उसके लिए. to go for a ride, isn't it? अच्छी राइड पे जाने के लिए. That car costs more than 1 crore. तो उस कार की जो कीमत है वो 1 करोड़ से भी ज्यादा है. More valuable than a Maruti, एक मारुति की गाड़ी से कार. बहुत ज्यादा कीमती है वो. right? So now, keeping that in mind, इस चीज को दिमाग में रखते हुए I want you to think about your own value. आप इस चीज को दिमाग में रखते हुए आप अपनी कीमत के बारे में सोचिए कि आप कितने कीमती हैं. How valuable are you? आप कितने कीमती हैं, आपकी क्या कीमत है. If you go to the market, how much will they pay you? अगर आपको मार्केट में बेचने जाए तो कितना पैसा मिलेगा? 20,000 per month, 20,000 एक महीने के, 50,000 per month. 50,000 एक महीने के. Is that your real value? क्या ये है आपकी असली कीमत? No way, right? What's your real value? आपकी असली कीमत क्या है? The value that the creator of the whole universe put for you. तो आपकी वो कीमत है जो इस संसार की जिसने रचना की है, उसने जो कीमत आपके ऊपर रखी है वो आपकी असली कीमत है. And what is that price? और वो क्या कीमत है? The very blood of his only one son. आपकी कीमत ये है कि उसने अपने इकलौते बेटे का खून आपके लिए दे दिया. Do you ever
meditate on this truth? क्या आप इस सच के ऊपर कभी ध्यान लगाते हैं? I want to encourage you to dwell on these aspects of your own value. मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आप अपनी खुद की कीमत के ऊपर ध्यान लगाएं, इस बारे में सोचें। But we are so overwhelmed by our own circumstances. मगर हम लोग सिर्फ क्या देखते हैं, हमारी परिस्थिति कैसी है, आसपास क्या चल रहा है, बस उस चीज के बारे में ध्यान लगाते हैं। Whenever we go to search for job, they're not giving us even 30,000 rupees per month. जब हम नौकरी ढूंढने जाते हैं तो वो तो हमें 30,000 भी नहीं दे रहे एक महीने के। Some of us, even the job that we have, they're saying that they'll terminate us. कुछ लोग तो ऐसे जहाँ पे हम जॉब कर भी रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि हम आपको निकाल देंगे जल्दी। If we are bothered by all of these circumstances, the Bible calls it living by sight. अगर हम इन सारी चीजों से अगर हम लोग परेशान हो जाते हैं तो बाइबल के अनुसार हम लोग किसके हिसाब से जी रहे हैं? जो चीजें हमें दिखती हैं हम उसके हिसाब से जी रहे हैं। But the Bible also calls us to live by faith. Isn't मगर it? बाइबल हमें ये भी कहती है कि विश्वास के हिसाब से जियो। To live by faith effectively, what you have to do is to remember who God is and who you have become because of what the Son of God did for you. अगर आप सही तरीके से जीना चाहते हैं जैसे परमेश्वर चाहता है तो आपको याद रखना पड़ेगा कि परमेश्वर कौन है और परमेश्वर ने आपको कैसा बनाया है। Because of what the Son of God did on the cross, you have an amazing value over your life. तो परमेश्वर के इकलौते बेटे ने जो किया है क्रॉस पे, उसकी वजह से आप बहुत ज्यादा कीमती हैं, आपकी कीमत बहुत ज्यादा है। That is what Brother Victor and Pastor Jason have been drumming और ये to भाई us. विक्टर और पास्टर जेसन इसी बारे में बात कर रहे थे। Remember what Pastor Jason said? आपको याद है पास्टर जेसन ने क्या बोला? In their most difficult circumstances of life, जब उनके जीवन में सबसे ज्यादा कठिन समय था, they looked to God and they did not allow the facts of their circumstances to move them. जब उनका सबसे कठिन समय था उस टाइम पे उन्होंने परिस्थिति को नहीं देखा, उन्होंने परमेश्वर को देखा। तो जो परिस्थिति थी उन्होंने उनको हिलने नहीं दिया, उनको मजबूत बना के रखा। So if we can look at the face of God तो अगर हम परमेश्वर की तरफ अपनी नजरें उठाएंगे और देखेंगे in the midst of our circumstances, चाहे हमारी सिचुएशन हमारी परिस्थिति कितनी ही खराब क्यों ना हो, and if we do not allow the circumstances of our life to move us here and there, और अगर जो परिस्थिति है चाहे वो कितनी खराब क्यों ना हो मगर हम उससे नहीं हिलेंगे, नहीं डगमगाएंगे, our circumstances will also change. तो जो हमारी परिस्थिति है वो बदलेगी ही बदलेगी। It's the same thing for our financial situation also. और यही सेम चीज हमारी आर्थिक परिस्थिति पे भी लागू होती है। So the first thing तो जो पहली चीज है about this heavenly algorithm तो जो हम आर्थिक एल्गोरिथम के बारे में बात कर रहे थे is to be. तो कि हमें होना है, Be fruitful. तो हमें फ्रूटफुल होना है, फलना है, फूलना है। Then God blessed them. That's number one, right? And number two, God said to them, be fruitful. तो हमें फलना है और फूलना है, बढ़ना है। मतलब To be is the very important thing. तो जो यहाँ पे जो लिखा है होना है वो बहुत जरूरी बात है। Be fruitful, and then the next thing he said is, and multiply. एक तो फलना है, फूलना है, और दूसरा क्या है कि कई गुना बढ़ना है, कई गुना। To multiply, to fill the earth and to subdue it. कि इतना कई गुना बढ़ना है कि पूरी धरती पे हम फैल जाए और पूरी धरती हमारे नीचे रहे, हमारे अधीन रहे। All of these things are about the doing. ये सारी चीजें किस बारे में है? करने के ऊपर, काम करने के ऊपर। To be and then to do, पहले होना है, फिर करना है, and then to have. और उसके बाद होगा। Because the next thing it says,
have dominion. क्योंकि अगली चीज क्या कहती है कि चीजें आपके अंदर रहेंगी, आप उनके ऊपर रहेंगे। So, this is a sequence, okay? ये इस तरीके से चलता है, पहले होना है, फिर करना है, और फिर आपकी चीजें अधीन हो जाएंगी, आप उनके ऊपर आ जाएंगे। This sequence of being, doing and having is very, very important. तो ये सही तरीका है, पहले होना, फिर करना, और फिर चीजें आपके नीचे, आप उनके ऊपर, आपके अधीन आ जाएंगी चीजें। You want to have money in your pocket, right? आपको चाहिए आपकी जेब में पैसा। We are talking about money, कि हम पैसे की बात कर रहे हैं, the lesser blessing, जो छोटा सच है, जो छोटी आशीष है, but very important nonetheless. मगर बहुत जरूरी है। Because we live and we pay for our food, we pay for our stay even here, right? With money. क्योंकि हम यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे आने के लिए, रहने के लिए, खाने के लिए, हर चीज के लिए हमें पैसा चाहिए। And so, in order to have that money in our pocket, we first have to get the first and the second thing set right. और अगर हमें हमारी जेब में पैसा चाहिए, तो जो पहली चीज है और जो दूसरी चीज है, उसको हमें सही स्थान पे रखना है, सही तरीके से करना है। God is very orderly. तो गॉड हमेशा हर चीज को सही तरीके से करता है। He has an orderly way of doing things. एक सही तरीका है गॉड परमेश्वर का चीजों को करने का। So if we follow according to what the algorithm of heaven is saying to us, तो अगर हम आत्मिक एल्गोरिथम की बात करें, अगर हम उसके हिसाब से चलें, we will have this financial success. तो हम सफल होंगे, आर्थिक रूप से हम सफल होंगे। It's very simple. ये बहुत सिंपल है। Be, do, have. सबसे पहले होना है, फिर करना है, और फिर होगा। This is the principle that we see from Genesis chapter 1 verse 28. और यही नियम है जो चलता है, अगर हम उत्पत्ति में भी देखें। But the problem with the world is that the world wants to do the opposite way. मगर जो संसार के लोगों की दिक्कत है कि वो इसको ना उल्टे तरीके से करते हैं। And I think it's true even with us also. और कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए भी सच है। We're more focused about the having, right? हमारा ध्यान सारा कहाँ है कि क्या है हमारे पास। We want to have the thing first. हमें पहले चीजों को चाहिए, हमें चीजें चाहिए। We're more concerned about having हमारा सारा ध्यान है कि मेरे को ये मिल जाए, rather than being and then the doing. हमारा ध्यान इस चीज पे नहीं है कि हम कौन हैं और हम क्या करते हैं। And if it is like that, अगर ये ऐसा रहेगा, things will not work for us. तो चीजें हमारे हिसाब से नहीं चलेंगी। For example, even when we talk about having that BMW Z4, for example, जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि मेरे को BMW Z4 गाड़ी चाहिए, 1 crore and above, right? 1 करोड़ से ज्यादा की है, What immediately comes to our mind? तो सबसे पहली चीज दिमाग में क्या आएगी? It's too expensive, कि ये तो बहुत महंगी है, right? It's impossible. कि मेरे लिए तो नामुमकिन है ये पाना। I wouldn't spend 1 crore for a car. मैं 1 करोड़ एक कार पे तो खर्च नहीं कर सकता। That's being so wasteful. ये तो बहुत खर्च, तो फालतू का खर्चा है। See, suddenly we become very religious. तो एक तरह से बड़े धार्मिक हो जाते हैं। And then we will never even go after it, isn't it? और हम उसके पीछे भी नहीं जाएंगे। We will not even believe that we can get it. और कहीं ना कहीं हम विश्वास भी नहीं करेंगे कि ये हमें मिल सकता है। It's too overwhelming to even think about it, right? इस चीज के बारे में तो हम सोच ही नहीं सकते, तो बहुत बड़ी चीज है। To become a millionaire? कि करोड़पति बनना, Too much. ये तो बहुत ज्यादा है। It'll involve too much of work. ये अगर करोड़पति बनना है तो उसके लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। And we lose motivation, we lose faith. और उसी दौरान हमारा विश्वास घट जाता है, कम हो जाता है। And that's the reason why we always draw your attention back
to how God set up things. और इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि परमेश्वर ने कैसे चीजों को बनाया है। In our church, we emphasize about our being. हम अपने कलीसिया में किस चीज पे आपको बोलते हैं, ध्यान दो कि आप कौन हो। That's our identity, isn't it? ये हम कौन हैं, ये चीज सबसे जरूरी है। We are the sons and daughters of God. हम परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं। We are royal priesthood. हम रॉयल को क्या बोलते हैं? हम रॉयल लोग हैं। Maharaja. महाराजा है, महाराजा महारानी है। शाही हम शाही लोग हैं। Right? We are royalty. हम लोग शाही लोग हैं। As well as we are the priesthood. और हम लोग प्रीस्ट भी हैं। प्रीस्ट जो पुजारी बने ना, पुजारी भी। Pujaris. we are pujaris although we see. We are priests also. So this is our identity. तो ये हम हैं, हम रॉयल लोग हैं और हम लोग प्रीस्ट हैं। ये हमारी आइडेंटिटी है, ये हमारी पहचान है। And that's why we always tell you to get 2 Corinthians chapter 8 verse 9. इसीलिए हम 2 कोरिन्थियन चैप्टर 8 verse 9. पाठ 8 वचन 9 के बारे में बार-बार बोलते हैं। We want you to memorize that and we want you to meditate on that. We have always said that, right? हमने हमेशा कहा है कि इस वचन को याद कर लो और इस पे ध्यान लगाओ, बार-बार ध्यान लगाओ। Do you remember 2 Corinthians chapter 8 verse 9? क्या आप लोगों को 2 कोरिन्थियन पाठ 8 वचन 9 याद है? Brother Victor has reminded that to us, right? भाई विक्टर ने अभी याद दिलाया उस वचन के बारे में। I'll not put it up here. मैं याद नहीं दिखाऊंगा आप लोगों को। We have to read it by heart. हमें उसको अपने मन से याद करना पड़ेगा। Are you ready? क्या आप रेडी हैं? I won't ask you to raise your hands. Anyway, let's give it a try, okay? चलिए आइए कोशिश करते हैं। And okay, second Corinthians chapter 8 verse 9. And we know that the grace of our Lord Jesus Christ, that though we are okay, let's do it one more time. Okay, let's go. And we know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sake he became poor, so that you through his poverty might become rich. You are rich is what the scripture is declaring. तो जो परमेश्वर का वचन है वो क्या कह रहा है कि आप बहुत अमीर हैं। That's about our identity, isn't और it? यही हमारी पहचान है। Let's also look at the thing about Moses, right? तो आइए मूसा के बारे में कुछ जानते हैं। When Moses had that encounter with God, जब मूसा परमेश्वर के सामने आया, what did he say? उसने क्या कहा? When Moses asked God, when God told him to go and set the Israelites free, and Moses asked God, who do I say have sent me? जब परमेश्वर ने मूसा को बोला कि जाओ यहूदियों को छुड़ाओ, तो मूसा ने क्या बोला परमेश्वर से? मूसा ने बोला कि मैं क्या बोलूंगा कि मुझे किसने भेजा है? And God said, tell them that I am has sent you. तो उनको बोलिए मैं जो हूँ उसने मुझे भेजा है। I am that I am. मैं जो हूँ वो ही हूँ। That's the name of God. यही परमेश्वर का नाम है। And God has also given you his name. और परमेश्वर ने आपको भी नाम दिया है। I am. मैं जो हूँ। This is very powerful. ये बहुत ताकतवर है। You can insert anything after that. उसके बाद आप कुछ भी लगा सकते हैं। I am rich. I am मैं हूँ अमीर। That is one thing. Since we are talking about finance, क्योंकि हम आर्थिक चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए ये बहुत जरूरी है समझना। so let us look at 2 Corinthians 5:21.
दूसरा कोरिन्थियन 5:21 को देखते हैं। We're very aware of this verse, isn't it? हम ज्यादातर लोग ये वर्ष को जानते हैं। Some of us are fed up with this verse. कुछ लोग बोर हो चुके हैं इस वर्ष को पढ़ के। But this is very important. मगर ये बहुत बहुत जरूरी है। For he made him who knew no sin to be sin for us, so that we can become the righteousness of God. जो पाप रहित है उसे उसने इसलिए पाप बलि बनाया कि हम उसके द्वारा परमेश्वर के सामने नेक ठहराए जाएं। So Brother Victor has so eloquently described this for us. तो भाई विक्टर ने बड़े अच्छे तरीके से इसको समझाया है। For every circumstances of our life, we can apply this formula also. हर परिस्थिति में, कोई भी परिस्थिति हो, हम इसको अपने जीवन में ला सकते हैं। I am the righteousness of God. कि मैं परमेश्वर की पवित्रता हूँ। In our weaknesses, चाहे मेरी कमजोरी है, even in our finances. और चाहे वो पैसे से आर्थिक स्थिति क्यों ना है। So Pema and I, we constantly declare this to ourselves. तो प्रेमा और मैं इस चीज को बार-बार इसकी घोषणा करते हैं। In all our failures, in all our inadequacies, we declare this to one another. हमारी कमजोरियां हैं, जो भी हमारी सिचुएशन है, लेकिन हम इस वचन की घोषणा करते हैं साथ में। Especially in our finances. खासकर हमारी आर्थिक स्थिति को लेकर। This is our identity. ये हमारी पहचान है। This is the first thing in the algorithm of God. और जो परमेश्वर की एल्गोरिथम है उसमें सबसे ऊपर यही चीज आती है। We just read 2 Corinthians 8:9, right? हमने अभी दूसरा कोरिन्थियन 8:9 पढ़ा। What about 1 Corinthians 1:30? और पहला कोरिन्थियन 1:30 के बारे में क्या? Is it there? Yes. But of him you are in Christ Jesus, who became for us wisdom from God, and righteousness and sanctification and redemption. क्योंकि तुम यीशु मसीह में उस कारण स्थित हो, वही परमेश्वर के वरदान के रूप में हमारी बुद्धि बन गया है। उसी के द्वारा हम निर्दोष ठहराए गए, ताकि परमेश्वर को समर्पित हो सके और हमें पापों से छुटकारा मिल पाए। All these truths ये सारा सच are about the very first thing, ये सारा सच सबसे पहली चीज के बारे में है, to be our identity. कि हमारी पहचान क्या है। See, if we are well grounded in this beingness of who we are, then the doing part will also more easily flow. अगर हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि हम कौन हैं, बहुत अच्छे से इस चीज को अगर हम समझ जाएं, तो जो करने वाला काम है, जो काम है, वो बहुत आसानी से हो जाएगा। For example, उदाहरण के तौर पे I used to be so excited about driving, right? देखिए, मुझे ड्राइविंग को लेकर ना, गाड़ी चलाने को लेकर मुझे बड़ी खुशी होती है। Since when I was a small kid. जब मैं छोटा बच्चा था तब से ही। So in my village, we rarely see a vehicle. तो हमारे गांव में हमें गाड़ियां आसानी से नहीं दिखती थी। Once in 1 year. एक साल में एक आध गाड़ी दिख जाए बस। So whenever we hear the sound of a vehicle coming, we can hear it from very far away. तो जब भी गाड़ी आती थी तो दूर से ही हमें आवाज आ जाती थी। So when we hear the sound of a vehicle coming from far away, we all get excited. तो जैसे ही हमें आवाज आती थी कि कोई गाड़ी आ रही है, तो हम सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड, बहुत ज्यादा खुश हो जाते थे। So we will start running. तो हम भागने लग जाते थे। Run towards the main road where the vehicle would come. तो वो रोड में भागो कि वहां गाड़ी आ रही है। And then we will wait for the vehicle to come. और हम इंतजार करेंगे कब वो गाड़ी आएगी। It gives us such pleasure to see that vehicle coming. उसे देख के हमें बहुत खुशी मिलती थी, बहुत संतुष्टि मिलती थी। Those are the happiest moments of our childhood. तो मेरे जो बचपन के सबसे खुशी वाले पल वही थे। And so we will stand in the side of the road and we'll look at it. तो हम रोड के किनारे खड़े होकर देखेंगे गाड़ी को। As a gari pass comes by and then goes in front, जैसी वो गाड़ी आती थी और हमारे सामने से निकलती थी,
We will run after it, right? पीछे भागते थे हम, We'll run as long as we can keep up with the vehicle. जब तक भाग पाए तब तक भागते रहते थे, जब तक उसका पीछा कर पाए। When we get tired, जब थक जाते थे only then we stop. तभी रुकते थे। So that is how fascinated we were with vehicles. तो हम ऐसे गाड़ियों को लेकर हम लोगों के अंदर ऐसी ऊर्जा थी। And so when I became the cook for the district medical officer of Tamenglong, तो जब मैं कुक बना डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में, there were lots of vehicles in that office. तो उस ऑफिस के अंदर तो बहुत सारी गाड़ियां थी। He is the DMO, the district medical officer. So under his control, so many ambulances. तो जो डीएमओ था डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस, उसके अंदर वहां पे बहुत सारी गाड़ियां थी, खासकर एम्बुलेंस बहुत सारी थी। So whenever the DMO is not there, तो जब भी वो डीएमओ वहां पे ऑफिस में नहीं होता था, I will take the key and then I will start the car. तो मैं जाता था और गाड़ी को स्टार्ट करता था, उसकी चाबी लेके जाता था। First step is just start the car. पहला स्टेप सिर्फ गाड़ी को स्टार्ट करना। I feel so good just starting the car. सिर्फ गाड़ी को स्टार्ट करने से एक अद्भुत खुशी मिलती थी। And after some time of doing that, और थोड़े टाइम वो करने के बाद you become more bold, right? तो अब थोड़ा सा जोश आ गया, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया, You put on the gear. तो अब गियर लगाना स्टार्ट कर दिया। First you put the clutch, तो right? पहले क्लच दबाया And then you put on the first gear. और पहला गियर लगाया Slowly, I pull out the car out of the garage. और धीरे धीरे मैंने गराज से गाड़ी को बाहर निकाला And then I'll pull it back in. और वापस अंदर लगाया। So happy, so satisfied. और खुशी, बहुत संतुष्टि मिलती थी ये करके। I keep doing that for a few months. कुछ महीनों तक मैं यही करता रहा, बाहर निकाला अंदर लगाया, बाहर निकाला अंदर Then I become more confident, right? और कॉन्फिडेंस आ गया और भरोसा आ गया अपने आप पे। This time, अब इस बार I take it out all the way from the garage. और पूरा मैंने गराज से पूरा बाहर निकाल लिया And I take it out onto the way, onto the road. और मैं रोड पे निकाल के ले गया इस बार। And one day, और एक दिन I drove the vehicle into the ditch. और मैंने उस गाड़ी को गड्ढे में गिरा दिया And I didn't know how to pull it out back. और मुझे पता नहीं था उस गड्ढे से वापस बाहर कैसे निकालूं मैं उसे। My heart was beating fast. धड़कन बढ़ गई बहुत ज्यादा। And when I was in that situation, और उस परिस्थिति में somebody came by and saw me and he pulled it out और of the किसी ने ditch. आया और मुझे देखा कि मैं इस परिस्थिति में फंसा हूं, तो मेरी मदद करी और गाड़ी बाहर निकलवाई। A big, huge relief. मुझे बड़ी शांति मिली। I slowly pull it back into the garage. मैंने चुपचाप आराम से उसको वापस गराज में खड़ा कर दिया। That's how I learned how to drive the car. तो देखा मैंने ऐसे सीधा गाड़ी चलाना। When you started out first, it's very overwhelming, right? You have the clutch, you have the brake, you have the accelerator, 3 things with 2 feet, right? How to do? शुरू में बड़ी दिक्कत है, बहुत सारी चीजें हैं, क्लच दबाना है, ब्रेक दबाना है, एक्सीलेटर दबाना है, गियर चेंज करने, सब चीज व्यस्त है, बहुत मुश्किल है। Yeah, you have to have the steering wheel. स्टीयरिंग को भी संभाल के रखना है Then you have to have the gear. और पूरे गियर को भी कंट्रोल करना है। And then you have the special gear also, smaller one. स्पेशल छोटा गियर होता है, And then there's the mirror in front of you. सामने शीशा भी लगा हुआ है, And there are 2 mirrors on the other side of the car. शीशे लगे हुए हैं, What to do? क्या क्या करें? Right? It's very overwhelming. तो बहुत सारा बहुत कुछ था ये करने के लिए। Any of you who don't know how to drive and you try to drive, और आपको गाड़ी चलानी आती है, आप कोशिश कर रहे हो गाड़ी चलाने की, you can raise your hands. आपके जैसे कौन है जिसको गाड़ी चलानी नहीं आती थी मगर आपने कोशिश करी? Can you relate to what I'm saying? आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Very much, right? Like this. So, but मगर once you start doing it bit by bit, right? Once you start learning it bit by bit, मगर एक बार आप सीखना शुरू कर देंगे, एक कदम पे एक कदम करके धीरे धीरे आप सीखना शुरू करेंगे, you can drive really well. तो आप बहुत अच्छे से गाड़ी चला सकते हैं। Nowadays, I drive in the city of Delhi. आजकल मैं दिल्ली के शहर में गाड़ी चलाता हूँ, I'm not even aware I'm driving. मुझे पता नहीं लगता कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ। I'm talking to my wife. मैं अपनी बीवी से बात करता हूँ, Sometimes I have daydreams. कई बार मैं दिन में सपने देखता हूँ गाड़ी चलाते हुए, I'm not even conscious that I'm driving. तो मुझे पता ही नहीं लगता मैं गाड़ी चला रहा हूँ, Suddenly, I've reached home. और एकदम से मैं देखता हूँ कि मैं तो घर पहुँच गया। Right?
And sometimes I'm so unconscious in driving that और कई बार मैं इतना खो जाता हूँ ड्राइविंग में, I have to go left, but I'm so used to driving on the right side. तो मुझे मुड़ना तो बाएं तरफ है मगर मैं दाईं तरफ मुड़ जाता हूँ। No, I'm so used to going one way. अच्छा, क्योंकि मुझे ना आदत है एक रास्ते में जाने की, Even if I have to go this way, I forget, and then I keep driving this side. क्योंकि मैं हमेशा इस रास्ते में जाता हूँ लेकिन अब मुझे इधर जाना है, लेकिन मैं ऐसा खोया रहता हूँ तो मैं उधर जाने की बजाय उधर ही चले जाता हूँ। All of this is unconscious, ये सब कुछ अपने आप ही होता है, but I'm safely driving the car. मगर मैं बिल्कुल सही तरीके से गाड़ी चलाता हूँ। It becomes effortless for me to drive. अब मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ती गाड़ी चलाने के लिए। How do I come to this place? कैसे मैं इस स्थान पे पहुंचा? I started out small, I started doing it. मैंने धीरे धीरे छोटा छोटा करके शुरू किया, धीरे धीरे एक एक स्टेप करके किया। You keep repeating it over and over again, बार बार उस चीज को बार बार दोहराया मैंने, and then it becomes effortless for you. और फिर एक समय ऐसा आया कि आपको बिना मेहनत किए अपने आप हो रहा है। It's the same thing with becoming rich. और यही सेम चीज है अमीर होने के लिए भी। Did I say that right? क्या मैंने सही बोला? You already are rich. आप पहले से ही अमीर हैं। You don't become rich. आप अमीर बनते नहीं हैं। You have to get used to being rich. आपको इस चीज की आदत डालनी पड़ेगी कि आप अमीर हैं। That's the first thing. ये पहला स्टेप है। The second thing I'm talking about, जो दूसरी चीज है इसके बारे में बात कर रहा हूँ, that's the doing part, right? वो है करना, जो काम करना है वो दूसरा पार्ट है, वो बाद में आएगा। The thing about the doing of being a rich person तो जो काम करना है अगर आप अमीर हैं, is you need to learn how to market, तो आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे मार्केटिंग करते हैं, कैसे अपनी चीजों को बेचते हैं, how to sell, कैसे बेचते हैं चीजों को। right? Only if you sell, you receive money, isn't it? जब आप कोई चीज बेचते हैं तभी तो पैसा मिलता है, And in order to sell, you have to market it first. और अगर आपको कुछ बेचना है तो उसको मार्केट में जाके उसको दिखाना पड़ेगा, अच्छे तरीके से उसका प्रचार करना पड़ेगा। Do you know that these things are there in the Bible also? आपको क्या पता है कि ये चीजें भी बाइबल में लिखी हुई हैं? You know that Jesus loved fishermen? आपको पता है कि जीसस बहुत प्यार करते थे मछुआरों से? Many of the disciples of Jesus were fishermen, right? आपको पता है कि जीसस के बहुत सारे चेले मछुआरे थे। How do those fishermen catch fish? जो वो मछुआरे थे वो मछली कैसे पकड़ते थे? They put a bait in their hook, right? वो चारा लगाते थे अपने कांटे के ऊपर, And then they put it out where the fishes are. और उसको वहां फेंकते थे जहां पे मछलियां हैं पानी में। And because of the bait, they come and तो क्योंकि Eat it. उसके ऊपर खाना लगा रखा है, चारा लगा रखा है, तो मछलियां खींची चली आती थी then you pull it out. और उसको बाहर निकाल लेते थे। See, we use the same principle even for fishing you guys into this camp also. तो हमने यही सिद्धांत इस्तेमाल किया आप सब लोगों को इस कैंप में लाने के लिए। We talk about the river and the fishing and the hills and all of these things. पहाड़ है, नदी है, बहुत सुंदर है। Many of the people who came to our camps, they're not interested about the things of God first. आप में से बहुत सारों को परमेश्वर के वचन से कोई लेना देना नहीं है। Sitting right there. He came to Satal because we told him that there's a lot of big lakes and there are lots of big fishes. वो सत्ता इसलिए गया क्योंकि हमने बताया कि वहाँ पे बहुत सारे ताल हैं और वहाँ बड़ी-बड़ी मछलियाँ हैं। We did good marketing. तो हमने बहुत अच्छी मार्केटिंग करी, हमने अपने प्रोडक्ट को अच्छे से बेचा। And that's why he is sitting here. तभी वो यहाँ पे है। It's been many years. बहुत साल हो गए। He's using the same technique now. आज वो भी वही सेम तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं।
So we bring them in with the hook and the bait. जो कांटा है और जो चारा है उससे हम अंदर लाते हैं. And then when they truly receive the word of God, और जब वो सच्चे तौर से परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं, their lives are completely changed. उनका जो जीवन है वो पूरी तरीके से बदल जाता है. So that's the biblical way of doing marketing and sales, तो right? ये बाइबल के हिसाब से सही तरीका है मार्केटिंग करने का. You can use the same principle in the realm of money and finance. तो आप आर्थिक चीजों में भी यही सिद्धांत को अप्लाई कर सकते हैं. And if you want to learn it, और अगर आप उसको सीखना चाहते हैं, I'm going to introduce a course on how to do it. तो मैं एक कोर्स बताऊंगा आप लोगों को. You can come and learn. तो आप आके सीख सकते हैं. Begin to do the things that rich people do. आप वो सारी चीजें करने लग जाएंगे जो अमीर लोग करते हैं. Then you can have what the rich people have. और फिर आप लोगों के पास वही होगा जो अमीर लोगों के पास है. Money will be no problem. पैसे की कोई दिक्कत नहीं होगी. Right? सही बात है. Anybody interested? कोई इंटरेस्ट है आप में से वो कोर्स करने के लिए? All right. ठीक है. There are some who are still not interested. Huh? आप में से कुछ अभी भी इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे. You all said that you wanted to become millionaires. आपने भी तो बोला था कि आप करोड़पति बनना चाहते हैं. You have to begin to do the things that millionaires also do. तो अगर आपको करोड़पति बनना है तो आपको वही चीजें करनी पड़ेंगी जो करोड़पति लोग कर रहे हैं. You have to begin to exchange values. तो आपको जो अपने सिद्धांत है, जो सीखी हुई चीजें उनको एक्सचेंज करना है, एक दूसरे से बांटना है. You have to bring the value that you have to the marketplace. तो आपकी जो ज्ञान है, आपकी जो शिक्षा है, वो आपको लेकर आना है मार्केट के अंदर. Then people will pay you तो तभी लोग उसके लिए पैसा देंगे आपको. for exchanging the value that you have जो brought to the आपके marketplace. सिद्धांत है जो आप लेकर आए मार्केट में, उसके बदले में लोग आपको पैसा देंगे. That's the doing part. ये है करने की चीज. Then obviously the having part will automatically follow. तो जो हमारे पास है, जो आएगा, वो अपने आप बाद में आ जाएगा. Simple, isn't it? ये सिंपल बात समझ में आ गई. Be, do, have. सबसे पहले होना, being and फिर उसके बाद करना और फिर पाना. We found all of these things in this one verse. ये सब कुछ हमें एक ही वचन में मिल गया. Genesis chapter 1, उत्पत्ति पाठ 1 28. वचन 28. Have you noted this verse down? आप इस वर्ष को लिख लीजिए. Have you- उत्पत्ति पाठ 1 वचन 28. Have you noted down the three principles? क्या आपने 3 जो सिद्धांत मैंने बताए उनको लिख लिया? So let's go to Philippians chapter 4 verse 18. Philippians chapter 4 verse 18. There. Philippians chapter 4 verse 18. But I have all and abound, I am full, having received of Epaphroditus the things which were sent from you, an odor of a sweet smell, a sacrifice acceptable, well pleasing to God. I have, मेरे पास all. है. Right? That's the having part. ये है होने वाला पार्ट जो है मेरे पास. So, yeah, I have all and I abound. मेरे पास है और वो बहुतायत में बहुत है. So Paul was able to give for तो all. इसीलिए पौलुस जो था वो दे सकता था, दे पा रहा था. Paul was even not only give spiritual riches, पर पौल ने सिर्फ आर्थिक चीजों को, आर्थिक अमीरी को नहीं दिया. he was helping people even with money. तो वो लोगों को आर्थिक रूप से भी मदद कर रहा था, पैसे से. The concept of tent making, जो सिद्धांत है, जो टेंट बनाता था पॉल, tent making ministry, टेंट मेकिंग, टेंट बनाने की सेवकाई, this came from what Paul did. ये पौलुस से ही आई, जो पॉल ने किया. Paul used to stay with
businessmen who are making tents and selling them. तो पॉल जो था वो उद्योगपति के साथ रहता था, उन उद्योगपतियों के साथ रहता था जो टेंट बनाते थे। He used to make tents alongside the business people. तो जो बाकी उद्योगपति थे उन लोगों के साथ में वो भी टेंट बनाता था। The businessmen with whom he was staying. जिन उन उद्योगपतियों के साथ जिनके साथ वो रहता था, साथ में मिलके बनाते थे। And he made money. और उससे उसने पैसा कमाया। And he used that money for the ministry. और उसने वो पैसा अपनी सेवकाई में लगाया। For our church, I have a very strong sense that God wants to raise up many tent makers. तो मुझे हमारे कलीसिया को लेके बिल्कुल कॉन्फिडेंस है, मुझे पक्का यकीन है कि परमेश्वर बहुत सारे लोगों को उठाएगा जो इस तरीके से टेंट बनाएंगे। So you all will become rich tent makers. तो आप सब लोग अमीर होंगे, अमीर टेंट बनाने वाले। This is very biblical. ये बिल्कुल बाइबल में से ही है। You can have all things आपके पास सब कुछ होगा and you can give towards all the good works that surrounds you और आप वो सारी चीजें अच्छे दूसरों को भी दे सकते हैं because you are rich. क्योंकि आप अमीर हैं। Say, I am rich. बोलिए मैं अमीर हूँ। Do you believe it? क्या आप विश्वास करते हैं? Let's believe this, आइए okay? इसका विश्वास करें इस चीज पे। So, remember, be, do, have. तो इस चीज को याद रखिए, होना, करना और पाना। I am rich. मैं अमीर हूँ, That's the B part. ये सबसे पहली है। And because I am a rich man, और क्योंकि मैं अमीर हूँ, I do the things that rich people do. इसीलिए मैं वो चीजें करता हूँ जो अमीर लोग करते हैं। I exchange values in the marketplace. मैं अपने सिद्धांतों को मार्केट में जाके देता हूँ And I make money. और उससे मैं पैसा कमाता हूँ And therefore I have money. और इसीलिए मेरे पास पैसा है। I have $1 million in my account. मेरे पास करोड़ों रुपए हैं मेरे बैंक के खाते में। This is biblical. ये बाइबल से है। How much money you have in your bank account will depend on how big your vision is. आपके बैंक के खाते में कितना पैसा है वो किस पे निर्भर करता है कि आपका जो विजन है, आपकी जो सोच है वो कितनी ऊंची है। So the vision is about the being part, okay? तो जो आपका जो विजन है, जो आपकी सोच है वो किस चीज पे है? होने पे। आप कौन हो? I am a man of vision. मैं हूँ ऐसा व्यक्ति जिसकी सोच बहुत ऊंची है। I am a woman of vision. मैं ऐसी औरत हूँ जिसकी सोच बहुत ऊंची है। This is what we have to become. और यही हमें होना है। May God bless us. परमेश्वर हम सबको आशीष दे, Become rich. ताकि हम लोग अमीर हो सके।